Good afternoon, students. So we have discussed two major topics, that is the sympathetic and parasympathetic nervous system, and in that we are going to discuss today adrenergic system, that is your sympathetic system. See, autonomic nervous system जो है ये जब पढ़ रहे हो तुम तो उसमें दो मेन ब्रांचेस हैं. पहला तुम्हारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जिसको हम लोग पूरा डिस्कस किए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और पैरासिम्पैथोलाइटिक सिस्टम मतलब जिसमें तुम्हारा वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है. ठीक है ना. अब हम लोग आ रहे हैं एड्रिनर्जिक सिस्टम पे. एक बार हम लोग एड्रिनर्जिक सिस्टम समझ लेंगे तो फिर एंटी एड्रिनर्जिक सिस्टम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे. एंटी एड्रिनर्जिक सिस्टम कैसे काम करता है, कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो इसके अगेंस्ट काम करते हैं. तो ऑब्वियसली एड्रिनर्जिक सिस्टम जो है हम लोगों का वो नॉर एड्रेनलिन जो हम लोगों का न्यूरोट्रांसमीटर है वो नॉर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर पे बेस्ड है ये. ठीक है ना. तो नॉर एड्रेनलिन जो है कैसे बनता है, एड्रेनर्जिक मोर प्रिसाइजली नॉर एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन is restricted to the sympathetic division of the autonomic system, and there are three closely related endogenous catecholamines which function here. These are noradrenaline, adrenaline and dopamine. देखो इन सब का हम लोग पूरा अच्छा से समझेंगे, फॉर्मेशन कैसे होता है, यूज कैसे होता है और किस तरह से इसको हम लोग थेरेपी में यूज करना शुरू किए. तो नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड डोपामिन, NAD. उसी तरह सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये सिंथेसिस कैसे होता है. तो सीक्वेंशियल स्टेप है सिंथेसिस का. फेनाइलएलिनिन इज द बेस मॉलिक्यूल. ठीक है ना. तो फेनाइलएलिनिन इन प्रेजेंस ऑफ फेनाइलएलिन हाइड्रोक्सिलेज इन लीवर इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, and tyrosine in presence of tyrosine hydroxylase in adrenergic neurons of the cytoplasm is converted into dopa, and in presence of dopa decarboxylase it is converted into dopamine, which is the first molecule, which is the first catecholamine as such which is formed in the body. In presence of beta hydroxylase this dopamine is converted into noradrenaline, and in presence of N-methyl transferase this noradrenaline is converted into adrenaline, which shows a variety of features in our body like increase in heart rate. Sympathetic surge is produced because of this adrenaline only, and the fight and flight response which you must have studied in your lower classes also, that is your fight and flight response is because of this hormone only, that is adrenaline. So this very neurotransmitter helps in the फॉर्मेशन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, और इसके प्रेजेंस में या तो आदमी लड़ाई करता है या उस सीन को एस्केप कर जाता है. Similarly, when we see the storage of catecholamines, noradrenaline is stored in the synaptic vesicles of granules within the adrenergic nerve terminal so that it can be released on demand. And the release of catecholamine, the nerve impulse coupled with catecholamines take place by the process of exocytosis. So uptake of catecholamines, there are two very efficient mechanisms by which this is done. So noradrenaline released from the nerve terminal is recaptured, and this occurs in two steps. First is the axonal uptake, and second is the an extra axonal uptake which leads to the uptake of catecholamines. So these catecholamines needs also to be metabolized, because अगर बहुत ज़्यादा इसका अमाउंट नर्व टर्मिनल्स में प्रेजेंट रह जाएगा तो जो एक्टिविटी है वो बहुत देर तक प्रोलॉन्ग हो जाएगा, है ना. सो एड्रेनलिन इन प्रेजेंस ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है इट इज कन्वर्टेड इनटू 3,4 डाइहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड. उसी तरह से नॉर एड्रेनलिन का भी मेटाबोलाइजिंग एंजाइम क्या है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज. This has been asked in a number of multiple choice question in previous year, that which of the following enzymes leads to the breakdown of adrenaline and noradrenaline. So you have to remember it is monoamine oxidase. MAO stands for monoamine oxidase. Similarly, COMT stands for catechol O methyl transferase. O-methyl transferase. This enzyme converts adrenaline into metanephrine. Again, metanephrine can be broken down by monoamine oxidase into vanillyl mandelic acid, and similarly noradrenaline is broken down by COMT to normetanephrine, which in presence of monoamine oxidase is again converted into vanillyl mandelic acid. So this is a cyclic process, and basically it is being governed by two main enzymes. First is monoamine oxidase and the other is
catechol O methyl transferase, that is COMT. So these response are taken by these neurotransmitters are present there, and they act on certain receptors, and we have named these receptors, and as the amount of receptor or the number of receptor which is present in these organs, the response is seen. Like alpha receptors, beta receptors are the two main receptors which are involved in the adrenergic transmission. They are again broken down into alpha 1, alpha 2 and beta 1, beta 2 receptors. They are mostly used. Beta 3 receptors are also there, but most common present in other organs, different organs, are beta 1 and beta 2. So first we will see alpha 1. Alpha 1 is found in most of the vascular smooth muscles, erectus pilus muscles, dilator pupillae, and in liver also alpha 1 receptors are present. So what happens after the stimulation of the alpha 1 receptors? Stimulation leads to vasoconstriction, that is, pulse rate will be increased, blood pressure will be increased. It will also lead to piloerection, that is, whenever alpha 1 receptors are stimulated, there would be an increase in the contractility of the hair follicles and there will be piloerection, जिसको हम लोग गूज बम्प्स भी बहुत बार बोलते हैं. जैसे बोलते हैं ना कि ऐसा बात सुने हम, सुनते ही मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज piloerection. इट ऑल्सो लीड्स टू प्यूपिलरी डायलेशन. देखो, जब भी कोई फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होना है, सो यू नीड मोर लाइट टू एंटर योर आईज, विच लीड्स टू प्यूपिलरी डायलेशन. एंड ग्लूकोज का अमाउंट हम लोगों को बहुत चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, चाहे या तो उस सीन से भागना है या वहाँ पे लड़ाई करना है, दोनों ही सिनेरियो में हम लोगों को ग्लूकोज चाहिए. तो अल्फा 1 रिसेप्टर जब भी लीवर में स्टिमुलेट होगा, इट विल लीड टू ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ग्लाइकोजेनोलाइसिस will lead to formation of more glucose from the precursor glycogen. Similarly, coming on to alpha 2 receptor, it is present in some CNS synapses and also in the platelets, some vascular smooth muscles, prejunctional membrane, and the postganglionic and parasynaptic nerve fibers also it is present. Stimulation of these alpha 2 receptors leads to inhibition and bradycardia. तो जो हार्ट रेट है वो क्या हो सकता है, उससे फॉल कर सकता है. सिमिलरली प्लेटलेट एग्रीगेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो इट लीड्स टू एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स. इट्स ए स्टिमुलेशन विल लीड टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इनहिबिशन ऑफ लाइपोलाइसिस विल बी देयर, मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन रुक जाएगा, एंड इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ द केमिकल ट्रांसमीटर. सो अल्फा 2 स्टिमुलेशन से ये सारे रिस्पॉन्सेज हम लोगों को देखने को मिलेंगे. कमिंग ऑन टू द बीटा रिसेप्टर्स. सो बीटा 1 is present in heart, kidney, posterior pituitary, adipose tissues. So these are the four major sites where beta 1 receptors are present. In heart, by the stimulation of beta 1 receptors, it will lead to cardiac stimulation, which will again lead to increase in the heart rate. In kidneys, beta 1 stimulation will lead to increase in renin secretion, and in posterior pituitary, increase stimulation of beta 1 receptors will lead to increase in secretion of antidiuretic hormone. So what this hormone will do? It will lead to retention of the fluid in body, and diuresis will be stopped or diuresis will be decreased, जिसके कारण क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन बॉडी में बढ़ेगा, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू स्वेलिंग. तो ये जनरली कब होता है? ये तब होता है जब हम लोग ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड रहते हैं. तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जब भी एडीएच इंक्रीज करेगा वो तब होता है जब हमको वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करना है. सिमिलरली बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन इन एडिपोज टिश्यू कैन लीड टू लाइपोलाइसिस. तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर में ड्रग्स को डेवलप करने के लिए जो बीटा 1 ऐसा हो जो सिर्फ और सिर्फ एडिपोज टिश्यू में स्टिमुलेट हो. अगर ये कर पाए हम लोग, तो इन फ्यूचर अ वेरी गुड वंडर ड्रग कैन बी क्रिएटेड फॉर ओबीज पेशेंट्स, जो कि इजीली फिर क्या कर सकेंगे, वेट लॉस कर सकेंगे उससे. Again, coming on to beta 2 receptors. Beta 2 receptors are present in smooth muscles, bronchial muscles, arterioles, यूटरस एंड लिवर सेल्स. तो अगर बीटा 2 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होगा तो इसके कारण क्या होगा, डायलेशन होगा, वैसोडाइलेशन होगा और सांस लेना आसान हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप बीटा 2 ब्लॉकर्स देते हो तो वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है. ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जो ब्रोंक्यूल्स है उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगा और उसके कारण फिर क्या होगा, सांस लेने में डिफिकल्टी होगा.
बट यही चीज अगर स्टिमुलेट कर रहे हो तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा, जिससे सांस लेने में आसानी होगा. Again, beta 2 stimulation in the uterus will lead to relaxation of the uterus. In liver cells, beta 2 stimulation leads to glycogenolysis, and again more glucose will be produced. So adrenergic drugs are also known as sympathomimetics. देखो मिमिक करना जो है MIME है ना, मिमिक हम लोग बोलते हैं ना मिमिक्री. मिमिक्री क्या होता है, मिमिक्री होता है किसी का भी नकल उतारना, है ना. तो ऐसे कोई भी ड्रग्स जो एड्रेनर्जिक सिस्टम का नकल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक्स, है ना. तो डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स आर देयर, दे एक्ट डायरेक्टली एज एगोनिस्ट on the alpha or beta adrenoceptors like adrenaline, noradrenaline, isoprenaline, phenylephrine, methoxamine, xylometazoline, salbutamol and many others. इन सब का यूज अभी हम लोग कमिंग स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा बीमारी है जिसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. Similarly, there are indirectly acting sympathomimetics which will not act directly but they will facilitate the action of these neurohormones. They act on the adrenergic neurons to release noradrenaline, which then acts on the adrenoceptors like tyramine. And there are mixed action sympathomimetics. They act directly as well as indirectly, that is ephedrine, amphetamine and methamphetamine. So action on the heart, on the blood vessels, blood pressure, respiration, eye, GIT, bladder and uterus are there, and splenic capsule can also be seen in addition to skeletal muscle, central nervous system, and there are some metabolic effects also. So individually अगर तुम देखना चाहोगे तो हार्ट में क्या होगा, जब भी एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन आएगा तो बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट होने से हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. उसी तरह से ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, एड्रेनर्जिक सिस्टम के स्टिमुलेशन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है. जब भी रेस्पिरेशन का अगर बात करोगे तो एड्रेनर्जिक सिस्टम का स्टिमुलेशन से ब्रोंको डायलेशन होगा. उसी तरह से ब्लड वेसल में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा जिसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा. आई में प्यूपिल्स हमेशा क्या होगा, प्यूपिलरी डायलेशन होगा जिसके कारण मोर लाइट कैन एंटर इनटू योर आईज and you can easily see. GIT में it can increase peristalsis and it can also increase peristalsis also, GI motility को भी बढ़ाएगा और acidity को भी बढ़ाएगा so that more food can be digested. ब्लैडर में ये डिट्रूसर को ये करता है, पकड़ के रखता है, ज़्यादा रिलैक्स नहीं होने देता है, तो रिटेंशन ऑफ यूरिन कैन हैपन विद दिस. यूट्रस में रिलैक्सेशन कराता है, स्प्लिनिक कैप्सूल में भी उसी तरह से रिलैक्सेशन कराएगा, स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और ओवरऑल अगर देखोगे तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और मेटाबॉलिज्म एनहांस हो जाता है. तो अगर डिक्रीज एड्रेनर्जिक एक्टिविटी कोई भी पेशेंट में है तो उसके कारण उसका वेट गेन होने लगेगा. वही अगर ये इंक्रीज एड्रेनर्जिक एक्टिविटी रहेगा तो मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम लोग BMR भी बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो बढ़ा हुआ आएगा और पेशेंट का वेट लॉस होगा. सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिपरेशन का अगर हम लोग बात करें तो कैटेकोलामीन्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन बट दे आर रैपिडली डिग्रेडेड बाय द मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंड कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, जो कि कहाँ होता है, इंटेस्टाइन का लाइनिंग में ही प्रेजेंट होता है. दैट इज द रीजन दीज ड्रग्स आर ओरली इनएक्टिव. और इसीलिए हम लोगों को इमरजेंसी में, ICU में जो भी पेशेंट है जिसका BP फॉल कर रहा है, मान लो सेप्टिक शॉक में है पेशेंट, तो सेप्टिक शॉक का पेशेंट को हम लोगों को अगर उसको उठाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में एड्रेनलिन या नॉरएड्रेनलिन हम लोग को देना पड़ता है. ठीक है. सो एड्रेनलिन इज गिवन जनरली इन द डोज ऑफ 0.2 to 0.5 मिलीग्राम. इट इज जनरली गिवन सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली. एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें आप IV दे सकते हो, ठीक है ना, दैट इज कार्डियक अरेस्ट. ठीक है. तो ये वाइवा में आपका कई बार क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है. नीट PG का MCQs में भी कई बार नीट PG में ये पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द ओनली कंडीशन इन विच एड्रेनलिन कैन बी गिवन इंट्रामस्कुलरली. अदरवाइज हमेशा हम लोगों को, जैसे मान लो एनाफाइलैक्टिक शॉक में दे रहे हैं, तो सबक्यूटेनियस देना है या इंट्रामस्कुलर देना है. IV एड्रेनलिन का ओनली एंड ओनली सिंगल इंडिकेशन है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि पेशेंट समझ लो कि जा चुका है और अब अगर तुम उसको नहीं दोगे तो क्या होगा, पेशेंट ऐसे भी मरने वाला है, वैसे भी मरने वाला है. अदरवाइज IV एड्रेनलिन का बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट होता है
जैसे तुम्हारा नेक्रोसिस करा सकता है वेसल्स का, वेन्स का। इस वजह से आईवी एड्रेनलिन हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं। और सेप्टिक शॉक के भी केस में पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि नॉर एड्रेनलिन से बीपी उठा लें, और उसके बाद भी ब्लड प्रेशर नहीं उठता है, हम लोगों को लगता है कि अब कोई चांस नहीं है, लॉस्ट होप है, तो वो एक कार्डियक अरेस्ट का केस जैसा ही है समझ लो, देन वी कैन स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन ऑफ एड्रेनलिन। अदरवाइज जनरली आईवी सिर्फ और सिर्फ कार्डियक अरेस्ट में ही देते हैं। नॉरएड्रेनलिन बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ड्रग है। इट इज़ अ मेजर वैसोप्रेसर विच इज़ यूज्ड इन आईसीयूज, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैसोप्रेसर है जिसको हम लोग आईसीयू में यूज करते हैं। 2 to 4 माइक्रोग्राम पर मिनट का डोज, अडल्ट डोज है ये, आईवी इन्फ्यूजन में स्टार्ट हम लोग करते हैं। उसी तरह से आइसोप्रेनिलिन इज यूज इन 20 मिलीग्राम सबलिंगुअल डोज इट इज गिवन, और 1 to 2 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर, 5 to 10 माइक्रोग्राम पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन इज गिवन। बहुत सारे एडीआर्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस है इसके, जैसे इट कैन कॉज ट्रांजिएंट रेस्टलेसनेस, पाल्पिटेशन, एंग्जाइटी, ट्रेमर्स एंड पैलस। तो ऐसे कोई भी पेशेंट जिनको ऑलरेडी ये चीज हो रखा है, उन लोगों में ये ड्रग हम लोग अवॉइड करते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि उसको और ये प्रॉब्लम बढ़ जाए। उसी तरह से ऑलरेडी अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है ना, सीवीए का पेशेंट है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है ना, तो उस केस में पहले ही हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वाला पेशेंट है, वीटी जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं बहुत बार है ना, तो वीटी में हम लोग जनरली नहीं देंगे। उसी तरह से एड्रेनलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉइड पेशेंट्स एंड इन पेशेंट्स विद एंजाइना। क्यों? क्योंकि एंजाइना में भी क्या होगा कि अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया तो जो ब्लड ऑलरेडी थोड़ा मोड़ा पहुंच रहा था कार्डियक टिश्यू को, वो भी क्या हो जाएगा, जाना बंद हो जाएगा। एंड शुड नॉट बी यूज्ड अलोंग विथ हैलोथेन, क्योंकि हैलोथेन के लिए सेंसिटाइज कर देता है, तो हैलोथेन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हैलोथेन इज अ inhalational anesthetic agent which is used for operative interventions. थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो प्रेशर एजेंट्स, प्रेशर एजेंट्स क्या क्या है, नॉरेड्रेनलिन, एफेड्रीन, डोपामीन, फेनाइलेफ्रीन है ना, मेथॉक्सामीन। उसी तरह से कार्डियक स्टिमुलेंट्स है कुछ जो हार्ट को ही बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कराते हैं, जैसे एड्रेनलिन, आइसोप्रेलिन, डोपामीन, डोब्यूटामीन भी हम लोग यूज़ करते हैं बहुत बार, ताकि हम लोग हार्ट रेट को बढ़ा सकें, ठीक है ना। या बीपी को बढ़ाने के लिए भी डोपामिन, डोब्यूटामिन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसी तरह से ब्रोंको डायलेटर्स जो ब्रोंकल्स को बहुत अच्छा से डायलेट करेंगे, सो एड्रेनलिन इज ऑल्सो अ वेरी गुड ब्रोंको डायलेटर। इन एडिशन टू दैट साल्ब्यूटामोल, जो कि क्या है तुम्हारा अल्फा 1 एगोनिस्ट है ना, तो वहां पे हम लोग उसको यूज करते हैं। टार्ब्यूटालिन, साल्मेट्रॉल, दीज आर द न्यूअर फॉर्मुलेशन ऑफ बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स, बीटा एगोनिस्ट्स, जो कि क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन कराएगा, जिससे क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में आसानी हो जाएगा। एड्रेनलिन इनहेलेशनल इज आल्सो गिवन इन केसेस ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक। मुझे आज भी एक पेशेंट याद है, आई वाज देयर इन मैक्स हॉस्पिटल, और वो पेशेंट जो है ना, उस आया था अफगानिस्तान से, ही केम फ्रॉम अफगानिस्तान, मे बी ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, और उसको कुछ यहाँ पे बिजनेस पर्पस भी था। ही वॉज क्वाइट अ रिच गाय, और वो खड़ा हुआ था अपने बालकनी में, होटल के बालकनी में, और वहां पे उसको इसने एक मधुमक्खी ने आके स्टिंग मार दिया। उसके कारण उसको पूरा एनाफाइलैक्टिक शॉक में चला गया पेशेंट। और उसको, ऐसे पेशेंट्स को इंट्यूबेट करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पाज्म हो जाता है कि गला में स्पेस ही नहीं होता है कि आप लैरिंजोस्कोपी करके और ईटी ट्यूब डाल पाओ। तो एंड ऑफ द डे वी वर प्लानिंग फॉर ट्रैकियोस्टोमी, बट हम लोगों ने पहले उसको प्लान किया कि पहले एड्रेनलिन का नेबुलाइजेशन वगैरह करके देखते हैं, अगर नहीं इम्प्रूव करेगा तो फिर तो ट्रैकियोस्टोमी इज द ओनली ऑप्शन, जहाँ पे आप यहाँ पे से छेद बना करके पेशेंट का एक ट्यूब डाल देते हो और फिर उससे उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं। तो फिर हमने जब एड्रेनलिन का नेबुलाइजेशन स्टार्ट किया तो पेशेंट रिस्पॉन्स्ड वेरी वेल, उसका एयरवे क्लियर होने लगा, साउंड ग्रंटिंग का जो था वो घटने लगा, सेक्रीशंस कम होने लगा, और फिर क्या हुआ कि और भी अलग अलग तरह से नेबुलाइज करके हाइड्रोकॉर्टिसोन, अलग अलग तरह का स्टेरॉइड्स दे करके पेशेंट को फिर वेंटिलेटर पे जाने से बचा लिया गया। सो बताने का मकसद ये है कि एड्रेनलिन वाया नेबुलाइजेशन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सीवियर केसेस ऑफ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये याद रखना है। नेजल डिकंजेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो नाक में स्टफीनेस, अभी जैसे जाड़ा बीता तो बहुत सारे पेशेंट्स आते थे जिनका नाक बंद है, नाक में सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस केस में फेनाइलेफ्रीन बहुत कॉमन कंपोजिशन है, एक दवा आता है सुमोकोल्ड, तो उसमें तुमको देखने को मिल जाता है, ये दवा मिला करके बेचा जाता है ना, तो जनरली कोल्ड के लिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। उसी तरह से जाइलोमेटाजोलिन तुम्हारा स्प्रे में रहता है। कल भी एक क्वेश्चन जो कोल्हान यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आया है
डे बिफोर यस्टरडे जो एग्जाम हुआ था कोल्हान यूनिवर्सिटी का, उसमें जाइलोमेटाजोलिन पे क्वेश्चन था। तुम लोग वो क्वेश्चन को वापस से देखना चाहते हो तो देख सकते हो, है ना। उसी तरह से ऑक्सीमेटाजोलिन है, नेफाजोलिन है एंड सूडोएफेड्रिन, जो कि कफ और कोल्ड में एज अ नेजल डिकंजेस्टेंट बहुत ज़्यादा यूज होता है। सीएनएस स्टिमुलेंट्स में भी यूज होता है, बट दीज आर जनरली ड्रग्स ऑफ एब्यूज। एम्फीटामिन, डेक्स एम्फीटामिन इसको देते हैं, मगर आजकल कुछ कुछ केसेस में ये ड्रग्स को बनाया गया है, जैसे मोडाफेनिल एक डिराइव किया गया है उससे, मॉडालट नाम से मार्केट में आता है। तो ये उन पेशेंट्स को हम लोग देते हैं जो बहुत ड्राउजी है और बाकी सब उनका ठीक है, बट बाई सीएनएस दे आर ड्राउजी और वो सोए रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग ये दवा दिया जाता है सो दैट वो स्टिमुलेट हो सके और एक्टिव रह सके। सेम गोज एनोरेक्टिक्स बहुत जगह पे यूज होते हैं, जैसे फेनफ्लुरामीन, डेक्सफेनफ्लुरामीन इज देयर, एंड यूटेराइन रिलैक्सेंट लाइक रिटोट्रीन, है ना। साल्ब्यूटामोल इज ऑल्सो अ वेरी गुड यूटेराइन रिलैक्सेंट। तो कभी कभी अगर डिलेड हमको मान लो डिलीवरी कराना है, कोई लेडी आई है गायनी में और हम चाह रहे हैं कि अभी उसका हमको डिलीवरी नहीं कराना है इमीडिएटली, में भी उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, प्री एक्लेम्शिया में है लेडी, और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा ठीक है, तो हम लोग उस केसेस में यूटराइन रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं कि यूटरस थोड़ा सा डायलेट हो जाए एंड वी कैन बाई टाइम। तो उन केसेस में ये सब ड्रग को हम लोग यूज कर सकते हैं। सो थेरेप्यूटिक यूजेस का अगर बात करें तो अभी तक तो हम लोग बहुत सारा थेरेप्यूटिक यूज ऐसे डिस्कस कर लिए हैं, बट पॉइंट वाइज एक बार देख लेते हैं। वैस्कुलर यूजेस क्या क्या है? हाइपोटेंसिव स्टेट, जिसमें तुम्हारा लो बीपी हो रखा है ऑलरेडी, पेशेंट को ब्लड प्रेशर बहुत कम है, वहां यूज कर सकते हैं। दे कैन बी यूज अलाउंग साइड लोकल एनेस्थेटिक्स। देखो, मान लो कि किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है लोकल साइड से, है ना, और ये एंड आर्टरीज नहीं है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि दे शुड नॉट बी एंड आर्टरीज, नॉट बी एंड आर्टरीज, ठीक है। तो वहां पे तुम एड्रेनलिन यूज कर सकते हो, नॉरेड्रेनलिन यूज कर सकते हो, क्या चीज के लिए? लोकल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि दिस विल लीड टू वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बट एंड आर्टरीज जहां पे भी है, जैसे मान लो फिंगर का टिप है ना, फिंगर टिप है, पेनिस है, तो यहाँ पे क्या है? एंड आर्टरीज है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर दे देंगे तो ऑर्गन का जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई भी पेशेंट को तुम देना चाहते हो, मान लो ब्लीडिंग हो रहा है, लोकल एनेस्थीसिया देके उसका थोड़ा पेन कम करना है, और फिर एड्रेनलिन या नॉरेड्रेनलिन देके वहां पे तुमको ब्लीडिंग कम करना है। बहुत बार मिक्स कॉम्बिनेशंस भी आता है, जिसमें एड्रेनलिन विद अ लोकल एनेस्थेटिक लाइक लिग्नोकेन इज मिक्स्ड देयर इन अ वाइल फॉर्म। तो तुम जब देखोगे तो वो वाइल को अच्छे से पढ़ लेना है हमेशा, कि प्लेन लिग्नोकेन तुम दे रहे हो या लिग्नोकेन मिक्स्ड विद एड्रेनलिन दे रहे हो। तो अगर लिग्नोकेन मिक्स्ड विद एड्रेनलिन दे रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर एंड आर्टरीज नहीं है, मान लो पैर में कोई कट लगा किसी भी जगह पे, मान लो हाथ में, आर्म में यहाँ पे कट लगा, तो यहाँ पे आराम से हम चाहेंगे कि फोर आर्म में हम इजीली एड्रेनलिन मिक्स्ड विद लोकल एनेस्थेटिक दे सकते हैं। बट अगर यही टिप ऑफ द फिंगर का मान लो यहाँ पे इंजुरी है और ब्लीडिंग हो रहा है और अब हमको इसका सर्जरी करना है, तो हम प्लेन लोकल एनेस्थेटिक देंगे, कभी भी एड्रेनलिन मिक्स्ड विद लोकल एनेस्थेटिक नहीं देंगे। सिमिलरली इट कैन बी यूज्ड फॉर नेजल डिकंजेशन, जैसे कि जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस। कार्डियक यूजेस भी है इसका, पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट, ये ऐसा सिनेरियो है जिसमें आप आईवी एड्रेनलिन दे सकते हो। स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम में भी इसको यूज करते हैं। पार्शियल और कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में भी इसको यूज किया जाता है, और सीएचएफ के केसेस में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केसेस में भी यूज करते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा में हम लोग एज अ नेबुलाइजर इसको यूज कर सकते हैं। एलर्जिक कंडीशंस में ऑब्वियसली, जैसा मैंने तुमको बताया अभी कि बी स्टिंग के कारण उस पेशेंट को एलर्जी हुआ था, तो वहां पे भी एलर्जिक कंडीशंस में भी तुम इसको यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो अ पोटेंट मिड्रियाटिक, है ना। तो मिड्रियासिस से क्या होगा? प्यूपिल विल बी डायलेटेड। जैसे अगर मान लो प्यूपिल ऐसा था, तो जैसे मिड्रियासिस होगा प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो प्यूपिल साइज इंक्रीज करेगा तो मोर लाइट विल बी एबल टू एंटर। Central uses are there like in narcolepsy, in patients which are excessive sleep, है ना, intractable sleep, यानी बहुत ज़्यादा ड्राउजी रहता है पेशेंट, sleep is very long duration, it is known as narcolepsy, patient सोया रहता है दिन भर. In certain cases of epilepsy it has got uses. In cases of Parkinsonism it can be used. Hyperkinetic children, obesity के केसेस में भी यूज होता है, बट कंट्रोल्ड यूज होता है विथ स्पेशल अप्रूवल, जब बीएमआई बहुत हाई है ना, उस केसेस में हम लोग यूज करते हैं.
नॉक्टर्नल यूरिनेसिस इन चिल्ड्रन एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के केस में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ यूटेराइन रिलैक्सेंट. इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिया में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं सो दैट ग्लाइकोजेनोलाइसिस कैन बी प्रोमोटेड. अब आते हैं डोपामीन. तो डोपामीन एंड एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट. लो डोज आईवी इन्फ्यूजन क्या करता है, डायलेट करता है मेसेंट्रिक एंड रीनल ब्लड वेसल्स को बिकॉज इट इज अ D1 रिसेप्टर acting drug, increases the glomerular filtration rate and sodium excretion is also increased. In moderately high dose it acts as a positive inotropic effect. तो डोपामीन एक ऐसा ड्रग है ना जिसका अलग अलग डोज पे अलग अलग एक्शन होता है. तो जब डोपामीन आप बहुत लो डोज में दोगे तो ये क्या करता है, किडनीज पे काम करता है. जब थोड़ा मॉडरेटली हाई डोज में दोगे तो इट हैज गॉट positively inotropic effect and in large doses it is a potent vasoconstrictor और फिर ब्लड प्रेशर वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है. तो अगर कोई किडनी पेशेंट है और अगर उसको आप डायलिसिस से बचाना चाह रहे हैं तो उस केसेस में आप डोपामीन का लो डोज में इन्फ्यूजन अगर लगाएंगे तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा. ठीक है, बट यही मॉडरेट डोज और हाई डोज पे इफेक्ट क्या हो जा रहा है, टोटली चेंज हो जा रहा है. सो नॉर्मली एम्प्लॉयड डोज रेजेस द कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. So used in cardiogenic and septic shock and in congestive heart failure. Dobutamine का बात करें तो it is a derivative of dopamine but not D1 and D2 agonist. Action on both alpha and beta receptors are seen. Clinically employed dose में हम लोग देखेंगे कि cardiac contractility को बढ़ा देता है and cardiac output भी increase कर जाता है without significant change in the heart rate and blood pressure. So relatively selective beta 1 agonist है. तो इसीलिए सीसीयू में जो तुम देखोगे कि कौन सा वैसोप्रेशर, कभी पूछ सकता है तुमसे कि कार्डियक केयर यूनिट जो होता है उसमें कार्डियक केयर यूनिट में तुम्हारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला वैसोप्रेशर डोब्यूटामीन है. ठीक है ना. तो सीसीयू में बहुत ज्यादा यूज होता है डोब्यूटामीन. और वही अगर कोई तुमसे बोल दे कि मेडिकल आईसीयू है, अगर एमआईसीयू है, तो कौन सा सबसे ज्यादा यूज होने वाला वैसोप्रेशर होगा, तो नॉर एड्रेनलिन. तो जनरल सेप्टिक शॉक के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है नॉर एड्रेनलिन. और अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो उसमें ज्यादा यूज कौन होता है, उसमें ज्यादा यूज होगा तुम्हारा डोब्यूटामीन. सो यूज एज आइनोट्रोपिक एजेंट इन पंप फेलियर लाइक इन एमआई, कार्डियक सर्जरी एंड सीवियर केसेस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. अब आते हैं एफेड्रीन पे. तो अल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एफेड्रा वल्गारिस. इसका यूज हम लोगों के फोर फादर्स एंसेस्टर्स बहुत अच्छे से जानते थे, है ना. तो हिमालयन रीजन्स में जनरली ये उगता था और वहां से इसको लोग इसका यूज करते थे. तो फॉल्कलोर में भी बहुत ज्यादा इसका यूज देखा गया है ना, एफेड्रीन का. सो मेनली एक्ट्स इनडायरेक्टली बट हैज सम डायरेक्ट एक्शन ऑन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर आल्सो. रिपीटेड इंजेक्शन कैन कॉज टैकीफाइलैक्सिस. अब टैकीफाइलैक्सिस एक वर्ड है जो आपका जनरल फार्मा में आपने पढ़ा है ना. इसमें क्या होता है, अगर आप रिपीटेड डोज कोई भी ड्रग का अगर देते हो, है ना, और हाई डोज में अगर आप दे देते हो तो फिर लो डोज में क्या होगा, वो दवा काम नहीं करेगा. ठीक है ना. तो ये बहुत बार बच्चों में देखा जाता है कि अगर कोई बच्चा को आप एक बार समझा रहे हो और आपने उसको फिर पीट दिया तो मार अगर खा गया वो बच्चा तो फिर बाद में क्या होगा, डांट से नहीं मानेगा, फिर उसको मारना ही पड़ेगा वो काम कराने. इसीलिए दवा का भी ये कुछ कुछ दवा का फीचर होता है कि हमेशा आप उसको एक सेफ डोज में या लो डोज में यूज कीजिए. अगर आप ज्यादा डोज में एक बार यूज कर लोगे तो लो डोज फिर काम नहीं करेगा. So a repeated injection can lead to tachyphylaxis as neuronal pool is small and it is resistant to monoamine oxidase, that is why it can be used orally. आप बाकी के केसेस में देख रहे थे कि ओरल यूज नहीं किया जा सकता था क्योंकि COMT और MAO दोनों क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और वो इसको क्या करेंगे, तोड़ के खत्म कर देंगे. बट एफेड्रीन कैन बी यूज्ड ओरली. तो यहाँ पे भी एक MCQ कई बार पूछा जा चुका है पहले कि विच इज द ओरली एक्टिंग ड्रग ऑफ दिस क्लास. तो अलग अलग ऑप्शंस रहेगा, डोपामीन, डोब्यूटामीन, नॉरएड्रेनलिन. उसमें एक आपको एफेड्रीन मिल जाएगा जो कैसे काम करता है, ओरल काम कर सकता है. बाकी ये सारे ड्रग एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, डोपामीन, डोब्यूटामीन आपको आईवी ही देना पड़ेगा या IM सबकट देना पड़ेगा. मतलब आपको पैरेंटरल रूट अपनाना पड़ेगा. बट इसमें आप एंटरल रूट से दे सकते हो. सो इट इज ऑब्वियसली लेस पोटेंट देन एड्रेनलिन बट लॉन्गर एक्टिंग ड्रग. It crosses blood-brain barrier and it can also lead to CNS stimulation. Used in mild chronic bronchial asthma and in cases of hypotension during anesthesia. Amphetamine is also a class of drug which is a synthetic compound of ephedrine. वहीं से derive किया गया है. बट इसको एज अ रिक्रिएशनल ड्रग और बहुत बार स्टिमुलेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है. डोपिंग
के केसेस में जो एथलीट्स बहुत बार पकड़ाते हैं, तो उसमें यही वो ड्रग है जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है ना. सो इट इज़ ओरली एक्टिव विथ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. CNS एक्शन इज मोर प्रोमिनेंट. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो अलर्टनेस बढ़ाता है. इट कैन इंक्रीज द कंसंट्रेशन स्पैन, अटेंशन स्पैन. It can also lead to euphoria, talkativeness, and increased work capacity. And fatigue is also allayed by the use of amphetamine. Athletic performance अगर हम लोग देखेंगे तो it is improved temporarily followed by the deterioration, है ना. तो डोप टेस्ट फॉर एथलीट्स में इसको बहुत बार यूज करते हैं हम लोग. सो रैश इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड, जिसके कारण क्या होगा, आपका वेकफुलनेस फॉलोड बाई एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड ट्रेमर्स, डिस्फोरिया आपको देखने को मिलेगा. रैश स्टैंड्स फॉर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, है ना. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसके कारण आपको क्या होता है, हम लोगों का डेली डायरनल रिदम एक्टिविटी ब्रेन जो है कंट्रोल करता है. देखो एक रास जो होता है RAAS वो अलग होता है ना. दिस इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, है ना. और ये रास जो है आपका अलग है. ये रास जो है ये किडनीज में होता है, ठीक है. एंड दिस रास इज प्रेजेंट इन CNS, ठीक है. सो इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर. हंगर इससे सप्रेस्ड हो जाता है, जिस जो कि इनिबिशन ऑफ हाइपोथैलेमिक फीडिंग सेंटर का स्टिमुलेशन इनिबिशन के कारण होता है. और इसी वजह से बहुत लोग इसको वेट लॉस करने के लिए भी यूज करते हैं. तो इट इज अ ड्रग विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द DGCI, और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे रोक लगा हुआ है. तो इसीलिए कोशिश करना है कि इसको वहीं यूज़ करना है जहां इसका एकदम इंडिकेशन आप जस्टिफाई कर सको, अदरवाइज यू कैन बी चार्ज विद मिसकंडक्ट. Amphetamines are drug of abuse, teenagers seeking thrill and kick. High doses produces euphoria, excitement, and may progress to mental confusion. It can also lead to delirium, palpitation, arrhythmia, and vomiting. And obviously, if repeatedly used, these can lead to behavioral abnormalities. It also produces acidic urine, and CNS action कैसा है, mediated by the noradrenaline release in the brain. फेनाइलेफ्रीन का अगर बात करें तो इट इज सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट, जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा. इट कैन ऑल्सो रेज BP बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. इट कैन ऑल्सो लीड टू रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया, जहाँ पे BP एक बार बढ़ के और उसके बाद बहुत ज़्यादा डाउन होने लगेगा. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ मिडरेट्रिक एजेंट टू डायलेट द प्यूपिल. प्यूपिलरी डायलेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको. इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द इंट्राओक्यूलर टेंशन. तो हम लोग ग्लाउकोमा वाले ड्रग्स में इसको फिर एक बार देखेंगे, है ना. कुछ कुछ चीज़ है जो हम अलग से तुम लोगों को एक बार कराएंगे, जैसे OP पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग. उसी तरह से ग्लाउकोमा, ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा, वो पूरा अलग से हम कराएंगे. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ nasal decongestant. So with this we come to the end of today's discussion, and rest of the things we will see in next class.